Every day, thousands of CA students refreshes LinkedIn emails, hoping to see that one mail. Congratulations, you have been selected. But what about the backstories and all? The applications, the rejections, the interview calls, the sleepless nights, and the FOMO. Welcome to the Gargar Industrial, where we bring you the stories beyond every offer letter. Hi everyone, myself Daksh Vyas and welcome to the very first episode of Gargar Industrials. Every CA student dreams of industrial training, but very few get to hear honest conversations from the people who have actually gone through the journey. Today we have an amazing panel here. So let me introduce one by one. Lakshya Jain from Morgan Stanley, Krishnika from Nippon, Mukti ji from BCG, and Siddhant from Deutsche Bank, and me from HSBC. So let's start with the round one, that is meet the panel. We will go ahead with the introduction of each and every panelist. So yeah, let's start with Krishnika first. Then Hello everyone, I'm Krishnika. I grew up in Nagpur and right after my CA intermediate, I kicked off my articleship with Deloitte at the Mumbai office. And then as I was looking for a switch of domain, I came to Nippon AIF, which comes under Nippon Asset Management with their private credit team. Lakshya? Yeah. Hi guys, my name is Lakshya Jain. I'm from Kota, Rajasthan. Currently pursuing my industrial training in Morgan Stanley in financial services domain. Did my articleship in BDO, Statutory Audit Financial Services, last year. Hello everyone, this is Mukti Jain. I am from Vadodara, Gujarat. I am currently pursuing my industrial training under BCG, Management Consulting domain. Earlier, I was placed in Deloitte, Ahmedabad, under Statutory Audit domain. Thank you. Hello everyone, this is Siddhant Vaishnav, a national hockey player. I am from Kota, Rajasthan, and I did my first year of articleship from KPMG in a statutory audit domain, and I'm currently undergoing industrial training at Deutsche Bank in finance domain. hi everyone, myself Daksh Vyas. I am pursuing my industrial training from HSBC Corporate Office in the innovation banking domain. So we will get to know about what the innovation banking domain in later on phase of the panel discussions and all. So let's go ahead with the second round of panel वाला thing कि तो चलो थोड़ा सा एकदम फनी सा या कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो राउंड टू जो है इट इज़ लाइक द स्टोरी नो बडी हैज़ एवर सीन. तो मतलब जो स्टोरी जो इन्होंने मतलब अभी तक कैसे इनकी इंडस्ट्रियल लगी है, कैसे ये वहाँ तक पहुँचे. जैसे मुझे पता है कि लक्ष्य की बहुत एकदम फ़नी सी और मतलब बहुत इंस्पायरिंग सी स्टोरी है. तो लेट्स गो अहेड विद लक्ष्य फर्स्ट कि भाई मतलब मुझे तो पता है बट आई वांट कि हमें भी पता चले और जो लार्जर ऑडियंस है वहाँ तक भी पहुँचे कि भाई हाउ ग्रेटफुल यू आर राइट नाउ और कैसा कैसा सब कुछ हुआ है एंड ऑल्सो ओवर टू. I have put up notice on 17th of September last year. हाँ मेरे को डेट याद है. 17th को मैंने नोटिस डाला था BDO में. And I landed an interview in Morgan Stanley on 21st of September within I think 4 days. It was a very wholesome experience. मेरे लिए बहुत वो था कि मेरे को 4 दिन में इंटरव्यू को कॉल आ गया और ऐसा I was very happy. और मैं बहुत वो था कि नहीं मेरे को ये वाला क्रैक करना ही है क्योंकि मैं बॉम्बे आया था. मेरा बॉम्बे में कोई भी कनेक्शन नहीं था. मेरे को जो भी करना था वो सेल्फ उसमें करना था. मैं उस टाइम 15 दिसंबर को मैं RVG शिफ्ट हुआ था. 17 को मैंने नोटिस डाल दिया था. मेरे RVG में भी कोई कनेक्शन नहीं थे कि मैं किसी से हेल्प ले सकूँ ये वो. 21st को आई गेव इंटरव्यू मॉर्गन का. दैट इंटरव्यू वॉज फॉर इंटरनल ऑडिट डोमेन. एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ. 3 राउंड तक आई वॉज देयर. 3rd राउंड में आई गॉट रिजेक्टेड. सो आई वॉज वेरी मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं क्या करूँगा. मेरा इतना अच्छा चांस चला गया. मेरा पहला वो था इंटरव्यू. मैं बहुत डिप्रेस था 2-3 दिन के लिए. मेरे को बहुत वो था कि अब मैं क्या करूँगा. आई स्टार्टेड अप्लाइंग डिफरेंट कंपनीज. देन फिर इंटरव्यू कॉल्स आए, इंटरव्यू हुए. तो इमीडिएट था किसी को क्या चाहिए था. देन आई थिंक on November 20th I again got an opportunity to apply for finance domain in Morgan Stanley. I landed for interview. But the thing was कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये मेरा लास्ट चांस है. अगर इसमें नहीं हुआ और क्योंकि मेरे पास एक भी ऑफर लेटर नहीं था. मेरी लास्ट डेट आने वाली थी, लास्ट वर्किंग डे आने वाला था. बट हुआ क्या. अब मैं मतलब एक छोटी सी स्टोरी है. मतलब वो तुम्हें लगेगा कैसा है कि लेकिन वो रियल स्टोरी है. जब मैं इंटरनल ऑडिट का इंटरव्यू देने गया था, सो द थिंग हैपन इज मॉर्गन कि अगर मैं किसी भी डोमेन का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, तो उस डोमेन का VP लेवल का कोई आदमी आता है. वो आपको पहले ब्रीफिंग देता है कि भाई किस डोमेन का आपका इंटरव्यू है, उसमें क्या काम है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऐसा. देन उधर एक Q&A राउंड होता है स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको कुछ डाउट है. सो वो Q&A राउंड में वो जो इंटरनल ऑडिट का VP था उसने समझाया कि रेसिडुअल रिस्क क्या होती है. आई वॉज नॉट अवेयर. मैं सच बताता हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं था कि रेसिडुअल रिस्क क्या होती है क्योंकि इंटर पढ़े बहुत टाइम हो गया था. और उस टाइम उसने बताया कि भले अच्छा रेसिडुअल रिस्क की होती है ऑडिट में, कभी भी रेसिडुअल रिस्क जीरो नहीं हो सकती. ऐसा बहुत सारी चीज़ें बताई उसने. मैंने सुना, मैंने वो आई वॉज नॉट अवेयर कि हाँ मतलब
ये लेटर ऑन मेरी लाइफ की स्टेज में मेरे को काम आएगा। मैंने 3 दिन दिए, उसके बाद मैं रिजेक्ट हो गया, मैं बहुत बोल रहा। देन कट टू द पॉइंट, जब मैं फाइनेंस का इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यूअर मेरे से पूछते कि अच्छा आप स्टार्ट से थे, आपका बैकग्राउंड ये था, आप बताओ ये सब चीज़ें। इसने मेरे वर्किंग्स के बारे में पूछा, मेरे जो मैंने वर्किंग नोट्स बनाए थे उन सब के बारे में पूछा। देन सडनली ही आस्क्ड मी कि डू यू नो अबाउट रिस्क इन ऑडिट। आई वाज लाइक हाँ मेरे को पता है अपना ये सब ये 2-3 टाइप के रिस्क होते हैं। देन ही आस्क्ड मी कि अच्छा तुम्हें रेसिडुअल रिस्क पता है क्या होता है? फॉर अ पॉइंट, मतलब 1 सेकंड के लिए आई वॉज कि भाई मैं फ्लैशबैक में चला गया था कि यार ये तो मैंने 1 महीना पहले इंटरनल ऑडिट के वीपी से समझा है कि भाई ऑडिट ये रेसिडुअल रिस्क क्या होती है। मैं उसको बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं जब इंटरव्यू से बाहर निकला कि हाँ भाई मतलब लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल, कि मैं जहाँ से चालू किया था और मैं जहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो वो बहुत मेरे लिए वो था। अभी मैं अगर ये किसी को स्टोरी बताता हूँ तो वो ऐसे बोलते हैं कि यार दिस इज़ समथिंग नॉट अनएक्सपेक्टेड। हाँ, सो दैट वाज माई स्टोरी। ग्रेट यार, मतलब वो कहते हैं ना कि जहाँ से ज्ञान मिलो वहाँ से लपेट लो करके, तो आपने बहुत अच्छे से ज्ञान तो लपेटा ही है तो तो या तो आई वुड लाइक टू आस्क कि किसी की ऐसी कोई स्टोरी हो। लेट्स स्टार्ट विद मुक्ति की भाई, हाउ डिड शी गेट इन बीसीजी और कैसे, मतलब हैव यू एवर प्लान कि तुम्हें बीसीजी भी जाना है या इट वाज लाइक ऑल अपने आप चीज़ें होती गई है, नाउ यू आर इन? एक्चुअली मैंने ऐसे डिसाइड तो नहीं किया था कि मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या ऐसा कुछ करना है, बट since very long I was like if someone holding same qualification as mine can be placed at a higher position then why not me, like always. तो मुझे बिग फोर के बारे में भी नहीं पता था. Then I got to know कि okay this is big four and Deloitte is at the top, so I was like I want to get into Deloitte and I got that. And likewise जब I was in Deloitte I was like ranting about my client to one of my colleague who is in transfer pricing. ही ऐसे ही उसने एक लिंक भेजी थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बीसीजी की, उसने बोला भर देना. माई क्लाइंट वॉज इन बैंगलोर. आज रेज्यूमे सबमिट करने की लास्ट डे थी एंड आई मेड द रेज्यूमे एंड सबमिटेड एट लाइक 11 PM उस दिन. ऐसे ही कि ठीक है होगा तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके. तो आई जॉइन डिलॉइट इन अप्रैल एंड वो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था इट्स लाइक अगस्त में. आई वॉज सो डन विद ऑडिट सिंस दैट. तो वो मैंने फिल किया एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग के, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने ऐसे कुछ फॉर्म भरा था. देन वन डे आई वॉज एडेड टू वन ग्रुप BCG इंटर्न्स करके ऐसे. तो दैट डे आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. सो दैट वॉज इट. यहाँ पे जितने भी जने बैठे हैं ऐसा क्यों लग रहा है सबके सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है. एंड एनीवे, तो आई वुड लाइक टू गो अहेड विद कृष्णिका फर्स्ट कि कैसे आपको निपॉन मिला एंड व्हाट इज द बैक स्टोरी एंड ऑल. So yeah, I was also in Deloitte audit, done with it, because it gets very monotonous after 2 or 3 quarters. Yeah, so when I think yeah, I guess yeah, but anyway मेरी आर्टिकलशिप को I think 3 या 4 महीने कुछ बचे होंगे. So I started applying for industrial training. I sent hundreds of emails. My CV was at every company I think. बट फिर मेरी आर्टिकलशिप को कुछ 2-2.5 महीने से बचे होंगे. सो मुझे 1-2 जगह से रैंडम कॉल्स आ रहे थे बट कोई इंटरव्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ भी डिडंट हैपन. एंड तब तक कि मैंने कोई रेफरेंस भी एसेस लगाने की कोशिश नहीं की थी. सो देन मुझे एक दिन आई रिसीव दिस कॉल फ्रॉम द फंड मैनेजर आई करंटली वर्क अंडर. ही सेड कि वीड लाइक टू हैव यू फॉर एन इंटरव्यू. आई वेंट देयर. इट वाज अ फिजिकल इंटरव्यू. ही ग्रिल्ड मी फॉर लाइक एन आवर और समथिंग एंड 3 or 4 days later I got the call from Nippon ka HR that you have it if you want. They discussed the details and yeah, that was it. Nippon was the only interview I gave. Yeah, so yeah, that was it. ग्रेट यार. तो मतलब लेट्स टॉक विद सिद्धांत कि भाई नेशनल लेवल पे हॉकी खेलते खेलते कैसे तुम CA में घुस गए और फिर CA से KPMG से डॉइचे बैंक एंड अब पता नहीं कहाँ पहुँचने वाले हो यार. तो लेट्स गो अहेड. देखते हैं एक्सप्लोर करते करते कहाँ पहुँचते हैं, वो तो अभी मुझे भी नहीं पता. ऐसा था कि CA हॉकी के छोड़ा तो उसका आंसर मैं पर्सनली दूंगा ऑफ कैमरा. और हाँ, और सी इंटर में मेरे 5 अटैम्प्ट थे और मेरा था कि जाऊंगा तो बिग फोर में जाऊंगा और मेरा रेफरेंस कहीं था नहीं. जब मैं अप्लाई कर रहा था तब फ्रेंड्स बोल रहे थे कि भाई तू कहीं और तो अप्लाई कर, ये वैकेंसी आ रही है वो आ रही है. मैंने कहा यार जाएंगे तो बिग फोर में जाएंगे वरना नहीं जाना. एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन 3 आउट ऑफ बिग फोर्स. ठीक है, वो सब तो
उसके बाद में मैंने जैसे ज्वाइन किया, मुझे फर्स्ट डे से पता था, इवन ज्वाइन करने से पहले पता था कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाना है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी ऐसा था, मेरे पास कहीं रेफरेंस नहीं था। और जब मैंने KPMG लीव किया तब भी मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं था, मैंने वेट किया, उसके बाद में कई ऑफ़र्स आए, और ड्यूरिंग दिस जर्नी मुझे कुछ इंडियन बैंक्स ने सेकेंड राउंड तक लेके गए, फिर मना भी किया। तो ऐसी कुछ जर्नी रही है। अब बस यार मेरी भी एक स्टोरी है बहुत ज़्यादा। मैं कल रात को लक्ष्य को वही बता रहा था। हे भगवान। तो द मोमेंट आई लेफ्ट BDO, तो आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे भाई सिटी बैंक में जाना है, मुझे IB में जाना है, सिटी बैंक IB। बिकॉज मुझे पता था भाई कि BCG वाले ये तो लेने नहीं वाले। मैंने BCG भरा था, बट 2 दिन बाद ही मुझे आ गया था कि वी रिग्रेट हो यार, मतलब यू डोंट मीट अवर क्राइटेरियाज एंड ऑल, ऐसा करके। तो उसके बाद आई वॉज क्लियर कि भाई BCG के बाद सबसे हाईएस्ट पेइंग कंपनी कौन सी है। वन वॉज अपोलो, जो उस टाइम पे वहाँ पे हायरिंग हो नहीं रही थी। एंड आई गॉट टू नो कि सिटी बैंक। तो सिटी बैंक में कोई रेफरेंस नहीं है, कहीं से HR के कॉन्टैक्ट्स भी नहीं मिल रहे, बिकॉज सिटी बैंक जनरली इंडस्ट्रियल ट्रेनीज नहीं हायर करते, बहुत कम, एकदम 1 या 2 मुश्किल से हायर करते होंगे। तो मैंने उठाया लिंक्डइन पे एक नई HR, मतलब ऐसा था कि HR ने नया ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो आई टेक्स्टेड हर ऑन लिंक्डइन, इट वाज लाइक रात की 12:30 ऐसा कुछ बज रही होगी कि आई एम लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड ऑल। तो शी वाज लाइक कि शेयर मी योर CV। तो मैंने रात को 12:30 बजे CV भेजा। तो शी वाज लाइक कि अभी नहीं भेजना था, कल सुबह भेजना ऑफिस आवर्स में, दिस इज़ माई मेल ID और ऐसा करके। तो मैंने सुबह सुबह भेजा, और मैं रोज़ उनको लिंक्डइन में मैसेज कर रहा हूँ कि भाई कुछ हुआ क्या। एंड शी इज़ लाइक कंसोलिंग मी कि हाँ मतलब आगे भेजा है, होगा होगा, मतलब कहीं इमेजिन HR। तो ऐसा था। तो मतलब BDO से हो गया, और आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि भाई अच्छी इंडस्ट्री में जाना है। मेरे पास ऑफर्स है बहुत सारा, आई विल नॉट लाइक टू टेक द नेम किन किन के ऑफर थे, बट अच्छे ऑफर्स थे। तो उस टाइम में मेरा होम टाउन चला गया। मुझे रात को 9 बजे समथिंग कॉल आता है कि कल सुबह 11 बजे यू आर हैविंग योर इंटरव्यू फॉर सिटी बैंक, एंड इट विल गोना बी वर्चुअल इंटरव्यू। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, पूरी रात बैठ के पढ़ाई वगैरह की। फर्स्ट राउंड गॉट क्लियर, सेकंड राउंड गॉट क्लियर, थर्ड गॉट क्लियर, मतलब बेसिकली मैंने 5 राउंड दिए सिटी बैंक के अंदर। 5th राउंड के अंदर आई गॉट क्लियर, मतलब इंटरव्यू वगैरह सब हो गया। एकदम क्रेजी था इंटरव्यू में, ऐसे मतलब शायरिया वगैरह बुलवाई थी उन्होंने, और वैसा सीन था। तो तो ये सब हुआ। तो मतलब ऐसा था कि जब इंटरव्यू हुआ 5th राउंड, तो आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मेरा हो ही गया। और इवन जो वहाँ पे जो इंटरव्यू जो ले रहे थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो ही वॉज लाइक या यू आर सेलेक्टेड एंड यू विल गेट द मेल, और वैसा करके। तो ऐसा हुआ। तो मैंने सबको बता दिया कि मेरा सिटी बैंक हो गया, मैंने इसको बता दिया, इसको बता दिया कि भाई सिटी बैंक हो गया, घर पे बता दिया सब कुछ। 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि आप 1 साल की जगह 2 साल के लिए आना चाहोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। तो आई वॉज लाइक कि मैंने बहुत सोचा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं हो सकता है। तो दे वर लाइक कि ठीक है, फिर हम कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग हायर कर रहे हैं, ही इज़ फ्रॉम IIM लखनऊ, ऐसा करके। तो अगेन हार्ट ब्रेक। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं यहाँ छोड़ के और मैं मेरे होम टाउन चला गया फिर से कि चलो यार जो होगा देखा जाएगा। अब वहाँ पे होम टाउन में आई गॉट फूड पॉइजनिंग एंड ऑल। तो मैं 12 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। आई वॉज एडमिटेड इन अहमदाबाद, और मेरा फ़ोन था वो चित्तौड़ में पड़ा। और उन 12 दिन के अंदर मुझे HR का फिर से कॉल आया, और फ़ोन वॉज डेड। और मतलब फिर मैं जब फिर से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर फिर से आया, जब मैंने फ़ोन किया उनको, तो दे वर लाइक कि हम आपको हायर करने वाले थे, वी हैव कॉल्ड यू 3 टाइम्स बट वी थॉट कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। और बस यहाँ पे ख़त्म कहानी फॉर सिटी बैंक। तो दैट वाज द हार्ट ब्रोकन स्टोरी ऑफ माइंड। तो ठीक है। बट उसके बाद मैंने HSBC में इंटरव्यू दिया फॉर कमर्शियल बैंकिंग, बट मुझे पता चला कि कमर्शियल बैंकिंग इज़ लाइक थोड़ा बहुत टॉक्सिक और बहुत काम करवाते हैं। तो मैंने मना कर दिया इवन आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर। उसके बाद मुझे 10 दिन बाद इनोवेशन बैंकिंग के लिए कॉल आया, नॉट फ्रॉम द HR बट फ्रॉम द वेस्ट इंडिया हेड ऑफ इनोवेशन बैंकिंग। और दिस इंटरव्यू हुआ 10 मिनट के लिए, एंड दे वर लाइक कि ठीक है यू आर सेलेक्टेड। और बस फिर HSBC में है, और चल रही है लाइफ धीरे धीरे। तो या आई होप कि आपको सबकी बिहाइंड द स्टोरी सुन के अच्छा लगा होगा। और एक थिंग हम सबके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि नो वन इज़ फ्रॉम मुंबई। किसी के पास भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं था कि भाई एकदम आया रेफरेंस लगाया था इंडस्ट्रियल मिल गई। देयर आर गाइज जिनको मल्टीपल अटैम्प्ट है, 5 अटैम्प्ट, किसी को 3 अटैम्प्ट, किसी को 1 2। तो या बट मिल जाती है। मतलब जाकिर खान का एक कोट है ना कि हमने करके देखा है हो जाता है, तो हो जाएगा। लेट्स गो अहेड विद द राउंड 3 दैट इज़ ब्रेकिंग इनटू द कंपनी। मतलब आप कैसे वहाँ पहुँचे एंड ऑल। तो I will like to ask one question from everyone. When did you start applying for the industrial training? You said right after your articleship get over and all. So, start. So I think it's never too late to start applying, but एक point वो होता है कि if you start applying early वो एक benefit होता है,
बट कुछ लोगों को लगता है कि मैं अगर अर्ली स्टार्ट करूँगा अप्लाई करना तो द थिंग इज़ कि जो कंपनियाँ वैकेंसीज निकालती हैं उन सबको इमीडिएट ज्वाइन ही चाहिए होता है. सो मेरे पर्सपेक्टिव ये था कि अगर मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर मेरे को सामने से रिजेक्शन भी मिल रहा है कि हमें इमीडिएट ज्वाइन ही चाहिए, एक थिंग मेरे लिए अच्छी हो जाती थी कि मेरे को कॉन्टैक्ट्स मिल जाते थे एचआर्स के, कि अगर मेरे को मेरे लास्ट मंथ में अगर उनको रीच आउट करने का है तो मेरे पास दो महीने पहले उनके कॉन्टैक्ट है कि हाँ उन्होंने मेरे को रिजेक्ट किया था ये बोल के कि हमें इमीडिएट ज्वाइन ही चाहिए, तो मैं उनको वापस लास्ट के 1 मंथ में कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ कि नाउ आई एम अवेलेबल फॉर इमीडिएट ज्वाइनिंग. तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है. Next question. Biggest interview challenge you've ever faced? I will start with Mukti. एक्चुअली BCG का इंटरव्यू प्रोसीजर इज़ रियली टफ. वो हमें अराउंड एक डेढ़ महीने का टाइम देता है टू प्रिपेयर थरली वेरी नाइसली. तो बेसिकली सिर्फ केस इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे, डिफरेंट काइंड ऑफ केस लाइक कॉस्ट केस रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू प्रोडक्ट एंट्री और एनी अदर सच लाइक IMA या उनके केस स्टडीज़ हमें पूरा पढ़ना होता है. सो राइट आफ्टर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड आई वॉज सो चिल कि हाँ ठीक है इतना तो क्या ही टफ होगा. तो मतलब जो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप था सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, सो इट वाज लाइक कि अपने कोहोर्ट में डिस्कस करके यू हैव टू प्रिपेयर एंड ऑल. सो मैंने लाइक आधे महीने तक किसी से बात ही नहीं करी है. वो सोच रही कि हाँ ठीक है हो ही जाएगा, इतना तो दिमाग है एंड ऑल. सो एक दो बार मुझे दूसरों लोगों ने रीच आउट किया था कि लेट्स गेट ऑन टू अ कॉल और समथिंग. सो आई वाज लाइक हाँ. तो ऐसे मैंने पूरे 15 दिन में हार्डली 3 to 4 टाइम्स ऐसे कॉल किया था विच इज़ सो लेस. उसके बाद मुझे स्ट्राइक हुआ नहीं यार ये थोड़ा हार्ड है ऐसे तो नहीं होगा. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. मेरा उस टाइम ऑडिट का भी थोड़ा हेक्टिक चल रहा था, तो इट वॉज लाइक मैं PG में रहती थी अहमदाबाद, तो मैं 4 बजे उठ जाती थी, फिर थोड़ा पढ़ती थी केस स्टडी एंड ऑल, क्योंकि बिना कंटेक्स्ट इवन इफ आई गेट इनटू अ कॉल विद माय कोहोर्ट आई वुडंट इट वुडंट बी सो इफेक्टिव. तो मैं सुबह थोड़ा पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी, देन शाम को आके मैं 1 या 2 कॉल करती थी. दैट्स हाउ लाइक. फिर लास्ट में भी मैंने बहुत कम कॉल्स किए लेकिन एंड सिर्फ मतलब ज़्यादा वीडियोज़ एंड ऑल देखे थे. सो इट वॉज लाइक सो टफ टू क्रैक दैट इंटरव्यू. मतलब वो सुबह 8 बजे से चालू होता है BCG का इंटरव्यू एंड वो चला था आई गेस 3 बजे तक. एंड यू डोंट नो कि तुम्हारा राउंड है नहीं है. इट इज़ लाइक कि वो लोग व्हाट्सअप में @ करके ऐसे टैग करके कि गेट रेडी यू आर बीइंग प्लेस फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड. सो नंबर ऑफ राउंड्स आर नॉट फिक्स्ड इन BCG इंटरव्यूज़. सो हर वक्त इट्स लाइक के ओ शिट अब मेरा होगा एंड या उसके बाद लास्ट राउंड जब मेरा था उसके बाद भी आई वाज इन कन्फ्यूजन कि और है नहीं है. सो या इट वाज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन विद सिद्धांत की टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन जो अभी तक पूछा हो, कि आई नो कि यू हैव गिवन लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड एप्लीकेशन यू हैव अप्लाइड फॉर, तो वन टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन जो एकदम तोते उड़ गए और वैसा कुछ हुआ कि भाई कंप्लीटली. टफेस्ट वैसे डिपेंड करता है कि तुम किस डोमेन में अप्लाई कर रहे हो. और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे रेज्यूमे से पूछेगा, डोमेन रिलेटेड पूछेगा या मार्केट नॉलेज, इन 3 जगहों से. तो रेज्यूमे से तो मुझसे हर एक वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी हाँ हर एक वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने सब बताए. और जैसे जैसे मेरे अलग अलग डोमेन्स के इंटरव्यूज़ होते थे तो मैं प्रिपेयर करके जाता था उसमें. मुझे एक याद है डॉइचे बैंक में एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है. तो मैंने डेरिवेटिव तो पता है क्या होता है, लेकिन एम्बेडेड डेरिवेटिव मैंने कभी जाना नहीं या हाँ, तो एम्बेडेड डेरिवेटिव मुझे समझा नहीं था. तो मैंने कहा आई नीड टू चेक ऑन दिस. तो वो मुझे याद है कि वो एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया था. बाकी तो कभी कुछ चैलेंज फेस किए नहीं ड्यूरिंग इंटरव्यूज़, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बता सकते हैं कितने ऑफर्स थे. 8 ऑफर्स थे मेरे पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए. तो चैलेंज तो ऐसा कुछ है नहीं, बस रेज्यूमे प्रिपेयर करके जाओ, हर एक वर्ड अपना, डोमेन किस डोमेन में अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ें, और एक मार्केट स्टडी और एक कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक चीज़ समझनी होगी कि इंटरव्यूअर्स जिनके भी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं वो सारे के सारे C इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं. तुम्हारे पास में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि वो तुम्हें हायर करें, बात वो है. सिर्फ एक ही लाइन का आंसर है. ठीक है. वन थिंग मतलब मेरे को एक चीज़ ऐड करनी है वो टफेस्ट क्वेश्चन वाले में. मतलब वो ऐसे टफ क्वेश्चन वाला कुछ होता नहीं है. इफ़ द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन विच इज़ नॉट
नॉट नोन बाय यू कि वो तुम्हारे डोमेन का नहीं है, तुम्हारे एरिया का नहीं है. ही जस्ट वांट टू चेक कि तुम उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता है. सो यू कैन ऑल्सो से कि भाई मेरे को नहीं आता है सर, या मेरे को 10 सेकंड चाहिए आंसर करने के लिए. सो वो ऐसा नहीं होता है कि टफ क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है. दे जस्ट वांट टू चेक योर रिस्पॉन्स ऑन दैट कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो उसने पहले फेस नहीं करी थी, तो उसमें वो कैसे रिएक्ट करता है वो. एक और चीज़, एंड रिमेंबर क्वेश्चन ना कहीं से भी आ सकता है. सो आई रिमेंबर मैंने मेरे रेज्यूमे में 8th स्टैंडर्ड में मैंने कोई बुक क्लब ज्वाइन किया था या समथिंग, उसके बारे में भी पूछने लग गए. सो मेक श्योर यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग दैट्स ऑन योर रेज्यूमे. कुछ भी पूछ सकते हैं. मेरा जो लास्ट राउंड था विथ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड पार्टनर, तो उन्होंने मतलब नॉर्मल केस के जैसे नहीं स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था जीके के क्वेश्चन से. एंड आई वाज नॉट दैट गुड क्योंकि वो बहुत ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन था. उन्होंने पूछा कि वडोदरा के सबसे पास में कौन सा पोर्ट है और मुझे थोड़े टाइम तक स्ट्राइक नहीं हुआ वो. और फिर द होल इंटरव्यू वेंट लाइक दैट कि अगर आप उस पोर्ट का वैल्यूएशन करोगे तो कैसे करोगे, एक्सरसाइज ऐसा था. ओके, गुड टू नो. एंड मतलब काफ़ी चीज़ें हमें ऐसे पता चली है जो शायद मुझे भी नहीं पता थी भाई. ये सब चीज़ें भी देखते हैं, जैसे लक्ष्य बाबा ने बताया है कि दे जस्ट चेक योर कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू टैकल द सिचुएशन एट दैट मोमेंट एंड ऑल. So yeah, let's go ahead with the next round, that is myth versus reality. It's gonna be very interactive and let's keep it short and kind of rapid fire जैसा. तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं मॉर्गन स्टैनली को. तो there is one myth in market कि भाई people think Morgan Stanley is only about Excels and only Big Four candidates and the one who is having a rank in CA interview will get into the Morgan Stanley. दिस इज़ अ मिथ. वॉट आई हैव सीन कि जब मैंने ज्वाइन किया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो जब मैं अपने फाइनेंस के जो और इंडस्ट्रियल ट्रेनी उनसे मिला था, आई गॉट टू नो कि एक इंडस्ट्रियल ट्रेनी एक ऐसी फर्म से है जिसमें वो और उसके साथ इकलौता मतलब वो 2 ही आर्टिकल थे पूरी फर्म में, और वो इतना बहुत छोटी फर्म थी, वो स्टार्टिंग फर्म थी बिल्कुल. तो वहाँ से मॉर्गन स्टैनली मैन, ही इज़ नॉट एन AIR. उसका और उसका बैकग्राउंड था, वो बहुत मिक्स बैकग्राउंड था. उसने ऑडिट भी किया था, थोड़ा टैक्स भी किया था, थोड़ा तो उसने सब किया था. तो दिस इज़ अ मिथ कि भाई I am also not an all India ranker. I'm not also from Big Four. मैं BDO से हूँ, Big Four. So मैं AIR भी नहीं हूँ. मेरे को एक अटेम्प्ट भी लगा था इंटर में, फिर भी मैं अभी मॉर्गन स्टैनली में हूँ. So I think this is a myth. And about Excel and all, हाँ Excel का काम होता है, but it's not all about Excel. मैंने और मेरे जो टीममेट्स हैं उनको देखा है कि वो वर्ड पे काम करते हैं, PPTs बनाते हैं, क्योंकि जो पिच डेक होता है क्लाइंट को पिच करने के लिए, वो भी इंटर्न जी बनाते हैं. बेसिक ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक्सेल पे काम करते हैं, वो ऑडिट में होता है कि हाँ पूरे टाइम एक्सेल में लगे हुए हैं ऐसा. My next question is to Mukti कि भाई people think BCG has no work-life balance. So is it a myth or reality? और भी BCG के देखे. Actually, that purely depends on the case you get into. There are some cases जहाँ पे people log off at 7, but there are also some cases who do not log off till 11 or 12 also. So that purely depends on case. या फिर आपकी टीम के साथ कैसा बॉन्डिंग है उससे भी डिपेंड करता है. If you are very मतलब I have talked to one senior who have communicated to his partner कि मेरा ये ऐसे classes and all रहता है, so I'll log off by 7 and घर जाके आधा एक घंटा I'll prepare for कल मेरे को क्या करना है, I'll send you that list and all. So that purely depends actually. My next question is to Siddhant कि DB interview is extremely technical. They ask only technical questions and all. Is it right or? right. हाँ. वैसे तो यस कह सकते हैं, लेकिन मैंने दिया था वाइट का इंटरव्यू. हाँ, क्योंकि टेक्निकल तो बहुत गए थे वो. मेरे KPMG में स्टेट ऑडिट का जो वर्क किया था मैंने, उसमें भी बहुत गए थे, क्योंकि देयर वर 2 पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ड्यूरिंग इंटरव्यू. तो उनमें से एक थे, उन्होंने भी स्टेट ऑडिट करी थी आज से 3 साल पहले करीब. तो उन्होंने मुझसे ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे सारे, और मतलब मैं कहूँगा कि मेरा 45 मिनट्स तक कुछ इंटरव्यू चला था DB का. उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, सभी पूछ डाला, ऐसा लगा. मतलब सब कुछ ही पूछ डाला. उन्होंने नहीं पूछा, दूसरे इंटरव्यूज़ में पूछा मुझसे. हाँ, ऐसा था. Up next, Krishnika. I got to know कि Nippon is only about mutual funds and private credit and all. Are there any other domains as well in Nippon or what's the case? So, as far as I know, Nippon hires industrial trainees only in certain departments.
either you get into the investment team, so the mutual fund ki debt investment teams hires, which they mostly invest in bonds and stuff. The private credit team hires, in which I am in, and the finance team hires. The finance team basically takes care of making financials, tax, all of that. So these three teams in Nippon hire. Yeah. You have asked many questions to us. I think it's your turn now. Speak less. Okay, so what was the most unexpected thing in HSBC? अनएक्सपेक्टेड वाज लाइक कि मुझे इंटरव्यू में जो बताया गया था कि भाई ये काम होने वाला है, तो वहाँ जाके कि वी विल बी डूइंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप का काम, प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड ऑल ये सब, बट वहाँ जाके पता चला कि कुछ और ही चल रहा है. तो माई फर्स्ट डे वॉज लाइक कि भाई मैं मतलब ऐसे वहाँ जाके पता चला कि भाई तुम्हें ऐसे मीटिंग्स में बैठना है प्रॉपर हेडफोन्स वगैरह लगा के और ऐसे मिनट्स वगैरह बनाना है मीटिंग के एंड ऑल. तो हाँ, ये ऐसा नहीं बोला था. हाँ, बट अब मुझे मज़ा आ रहा है ऐसे कि कुछ काम नहीं कर, ऐसा लगता है पिक्चर देखनी है ऑफिस में जाके. लेट्स डीप डाइव इनटू द टेक्निकलिटीज और मतलब व्हाट द वर्क दे डू इन देयर डोमेन एंड ऑल, की क्या क्या करते हैं. जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम मुक्ति, शी इज इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आई गेस. या तो लेट्स स्टार्ट विद. Okay, so under management consulting, you can get different cases. I am currently placed in cost case. So in that you have to optimize the cost of the client. So उसके अलावा मेरे कोहोर्ट में जितने लोग हैं, some are in transformation, some are in new entry case. तो उसमें what happens in BCGs, आपको अगर एक मॉड्यूल दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेगमेंट में मेरे को कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, सो इट इज़ होल एंड सोल माई अथॉरिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी हर चीज़ मुझे पता होती है. सो इट्स नॉट लाइक ऑडिट. सो आपको जो भी मॉड्यूल मिलती है, इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग कि आपको क्या क्या लीवर्स इम्प्लीमेंट कराने हैं. जैसे कि कोई कॉस्ट रिडक्शन है तो उसमें क्या क्या पॉसिबल है, फिर क्लाइंट से बात करनी है, कोई नए वेंडर्स ढूंढने हैं, कुछ भी करना है, इट्स ऑल अपॉन यू. उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको ही कराना है. सो इट वर्क्स लाइक दैट. इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो आपको पूरी रिसर्च करनी होती है फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, एंड इन BCG यू हैव टू वर्क सो वेल विद द डेक्स एंड ऑल rather than Excels. So I work in finance control group, which is basically FCG. In FCG, I work in FX team, which basically hedge for Morgan Stanley. We hedge different currencies, but for Morgan Stanley internal funds. So I work in finance domain at Deutsche Bank, and in finance domain my role is around analyzing financial performance of Deutsche Bank's different businesses, maybe it investment bank, asset management, private bank or anything, and we have to report it to Frankfurt, Germany. So I work in private credit. We invest in debt instruments of companies or debentures. So the work mostly entails researching that company to make that investment decision. The research is A to Z. So who the promoters are, what kind of numbers they're doing, peer comparison, everything. And yeah, so it's a lot of research work. Yeah. मैं मेरा बता देता हूँ. आई एम इन इनोवेशन बैंकिंग डोमेन और मतलब मैं कुछ काम नहीं करता हूँ. मैं जाता हूँ टीटी खेल के आ जाता हूँ, खाना खा के आ जाता हूँ, ऑफिस में बैठ के शायरी वायरी लिखता हूँ, डेट्स इट. बस मैं इतना ही काम करता हूँ. तो या वन स्पेसिफिक क्वेश्चन टू मुक्ति कि भाई वन थिंग यू लाइक अबाउट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जर्नी और अभी जो भी तुम कर रहे हो उसके लिए. So basically, one thing I like about being in consulting is that you can be your own voice in the room. There were instances where I was just in raw form, I was arguing with my partner कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करते तो ज़्यादा beneficial होगा. उस time it was normal to be in that room where I can speak what I feel. But जब मैं सोचती हूँ कि what I was doing back 1 year, तो audit में it was mostly like you have been assigned this work and you have to do this and this has to be done in this manner only. आपको कोई दिमाग नहीं चलाना, you just have to do this काम. But here you do not, मतलब वो लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपको कैसे करना है. They'll just say कि आपको ये करके देना है. They just want the output and you have to think कि आपको कैसे क्या करना है. It's been a privilege to be in BCG actually. It is heavy monsoon in Mumbai, as you all know, and we get car facility at BCG. So pick up and drop होता है cab से.
So when I see people, okay, they are like struggling so hard in this rain, and we are getting the car for the commute and all, it feels कि यार if not car तो ये struggle तो मैं नहीं कर पाती local का. So this is one thing. And हम टीम डिनर्स पे लाइक बहुत ही लग्जरियस होटल्स रेस्टोरेंट्स जाते हैं. सो दिस हैज़ बिकम लाइक न्यू नॉर्मल. चलो लास्ट एक रैपिड फायर राउंड करते हैं. तो रैपिड फायर राउंड पता होगा, रैपिडली आंसर. तो लेट्स गो अहेड विद रैपिड फायर वाला राउंड. क्वेश्चन नंबर 1, ड्रीम कंपनी आफ्टर सीए. ब्लैक रॉक. मोस्ट अंडररेटेड स्किल. Most underrated skill would be, I think, reading people. One finance creator you follow. CA साक्षी जैन. Question is to Siddhant. Resume or referral, which works more? Your resume should be good or your reference should be good? So reference is good, but resume is the key. One app you can't survive without. Splitwise. I was actually gonna say that. Yeah, Mumbai में living in a hostel with friends. Splitwise. One CA teacher you admire a lot. BB sir. Question is to Siddhant कि if not CA then what? Okay. Okay, if not CA, then running my own business. Last question. One word for your company. Opportunity. So yeah, we are at the last point of the interview. So it's a round, last round जो होने वाला है, that is pass the mic. तो इसमें each panelist will pass the mic to another one जिससे वो कुछ भी question पूछना चाहते हैं. मतलब it's like now you can target in front of camera. So yeah, let's start with Krishna. I ask Lakshay. Lakshay, what do you think the future is for a chartered accountant in Morgan Stanley? Specifically in Morgan Stanley. I think मतलब मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है इसमें, बट आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इनफ नहीं है फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए. बिकॉज चेंजिंग मतलब बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट है मॉर्गन स्टैनली. अभी मॉर्गन स्टैनली मैं जब से ज्वाइन किया विद इन 6 months आई हैव सीन लॉट ऑफ प्रोसेसेस बीइंग ऑटोमेटेड बाय एआई. अपार्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी यू शुड बी एबल टू अडेप्ट विद इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. उसके साथ आपको टेक्नोलॉजी सीखना है, आपको एआई सीखना है, आपको न्यू इंटरफेस सीखना है कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है. सो आई थिंक बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक मॉर्गन स्टैनली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का क्या वो है. लेकिन मेरे को लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इनफ नहीं है. आपको साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स, अपने टेक्निकल स्किल्स और भी डेवलप करने चाहिए. वैसा मतलब मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर तेरे को BCG नहीं मिलता तो तू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाती, और अगर जाती तो अपने सेम टाउन में जाती या फिर बॉम्बे के लिए टारगेट करती. वैसा मुंबई टारगेट करती, क्योंकि मुंबई इज़ बीन अ सिटी जहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एवरी डे. सो या, मुंबई इज़ बहुत प्यारी सिटी है. Have you ever considered leaving this 9 to 5 and starting something of your own, freelancing or like anything? Okay. I'm sure about one thing कि 9 to 5 तो नहीं करूँगा. जल्द से जल्द इस लूप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जो पूरा मुंबई जिसमें फंसा हुआ है. तो जैसे तुम्हारा निपॉन हो गया था, तो आगे कुछ कंसिडर करने का माइंड में आया कि और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं, या यही फाइनल कर दिया? सो मेरा निपॉन का जो ऑफर लेटर था दैट केम 2 months बिफोर मेरी आर्टिकलशिप की एंडिंग. तो उसके बाद आई हैड इनफ टाइम कि मैं और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती थी, एंड मैंने किया भी. आई अप्लाइड टू प्लेसेस, बट आई थिंक जो रोल जितना लुक्रेटिव निपॉन में मुझे मिल रहा था, नथिंग वाज इक्वली गुड, सो आई जस्ट वेंट विद इट. या One question for Daksh. What do you want from your life? Like, what is your goal of your life? मेरा तो एक ही गोल है, जैसे अभी अपन जाकिर खान के शो में गए थे एंड ऑल. तो ऐसा कि आई डोंट वांट एनीथिंग मॉनेटरी वगैरह, ऐसा कुछ कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी में कुछ करना है या फिर मुझे बहुत पैसे कमाने, नथिंग. मुझे क्या लाइफ में एक शो करना है पूरा ऑडिटोरियम फुल करके, जस्ट लाइक जाकिर खान. दैट्स इट. एवरी ऑफर लेटर इज ए स्टोरी एंड यू हर्ड 5 of them.
तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इससे सीखने को मिला हो. एंड द वन हु आर लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आई होप कि बहुत सारे इंसाइट्स मिले हो फ्रॉम द पैनलिस्ट जो बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से यहाँ पे है. और वन थिंग जो हमारे बीच में कॉमन है कि वी आर ऑल प्राउड आरवीजियंस. तो मतलब आई विल लाइक टू टेल वन मोर थिंग कि आरवीजी ने भी मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ग्रैब करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करी है बिकॉज ऑफ द लाइक माइंडेड पीपल आई हैव फाउंड ओवर देयर, और दैट्स इट. So if you want any help or anything, if you are looking for industrial training or anything in your life, then you can contact us. I will upload, or I will keep a point of contact in the description video of this channel so that you can contact us. Maybe on LinkedIn, Instagram, maybe the personal contacts and all. So yeah, that's all from our side. मिलते हैं जल्दी बहुत ही नेक्स्ट पैनल डिस्कशन से with more people around us, and मज़ा आएगा. तो please stay tuned. Like, share, and subscribe. This is Lakshya signing off.